Bismillahirrahmanirrahim. Now we are here with a numerical three-phase motor with a 460 volt, 25 horsepower is its capacity, 60 hertz, operating frequency, 4-pole Y-connected induction motor has the following impedance. R1, X1 ये सब कुछ given है और find out क्या करना है? To find out we want to find out the maximum torque of the motor और उसकी किस speed पे वो maximum torque होगा और slip उस वक्त क्या होगी? What is the starting torque of this motor? And when the rotor resistance is doubled, what is the speed at which maximum torque occur now? And what is the new starting torque of this motor? और उसके बाद हमने ये दो जो cases हैं इनको plot करना है. So first of all, very important thing कि you have to understand कि आपके पास ये जो motor है ये Y connected है या delta connected है. And if that motor is Y connected, तो जो भी आपके पास वोल्टेज गिवन होते हैं, these are always line voltage, और लाइन वोल्टेज को आपने क्या करना होता है, you will divide it by √3. So you have 460 volt divided by √3. Now this was R1 and this was 0.641 ohms and J 1.106 ohms. JX0 आपके पास है J 26.3 ohms और JX2 आपके पास है, this is J 0.464 ohms and this is R2 by S and this is 0.332 divided the value of S. स्लिप की वैल्यू अभी तक अननोन है तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है. तो थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ है कि आप यहाँ से सर्किट को कट करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर थेवेनिन एंड एक्स थेवेनिन बाय शॉर्ट सर्किट दिस वोल्टेज सोर्स. और जब आपने वी थेवेनिन कैलकुलेट करना है तो आपने वोल्टेज वी एन रूल लगाना है. तो ये हमने वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी हुई हैं और ताकि ये आपको पता है ये कैसे करना है. सो वी थेवेनिन इज 254.79 angle 1.33 degrees. And what is R2 by S? This is sorry R1. ये जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू है, this is R1 and it has a value जो थेवेनिन इक्विवेलेंट R थेवेनिन, ये आपने R थेवेनिन जो कैलकुलेट करेंगे, this is 0.5899 ohms. JX7 आपके पास आएगी J 1.075 ohms. JX2 आपके पास वही है पुरानी वाली 0.464 ohms और आपके पास जो R2 by S है, this is the old one 0.332 divided by the value of S. So first of all we want to calculate slip for torque maximum. इसके रिलेशन का आपको पता है, this is equals to R2 divided by R Thevenin square plus X Thevenin square plus X2 whole square. ये रिलेशन आपके पास कहाँ से आई? ये हमने इस पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाया जिसमें हमारे पास Z थेवेनिन और Z लोड ये इक्वल होते हैं कॉन्जुगेट के, हमने इक्वल पुट करना होता है और वहां से हमारे पास R2 by S से ये वैल्यू आ जाती है. सो बाय कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज 0.332 divided by 0.5899 plus J 1.1075 plus J 0.464 ohms. Now ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें और उसके बाद उसको R थीटा में कन्वर्ट करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी R थीटा, that will give you the value of magnitude. So slip for torque maximum आपके पास जो यहाँ पे आती है, this is 0.185. Now if we put the value of 0.185 at this point, so आपके पास जो R2 by S की जो वैल्यू आएगी that will be 1.794 ohms. So what next? Now I want to calculate the value of I2. What is I2? I2 जो ये करंट आपके पास रोटर करंट है जो यहां से पास करेगा, this will be equals to
I2 जो आपने कैलकुलेट करना है, दिस इज इक्वल्स टू वी थेवेनिन डिवाइडेड बाय जेड टोटल। सो यहाँ पे आप लोगों ने 254.79 और साथ में आप लोगों ने एंगल्स भी मेंशन करने हैं ताकि यू गेट द एक्यूरेट वैल्यू, डिवाइडेड बाय 0.5899 प्लस j 1.075 प्लस j 0.464 plus 1.794. Now, when I will calculate this, so value will come out to be 89.81 and the angle will be minus 31.52 degrees, and this is ampere. This is of course a lagging current. Now, I have all the things to calculate the maximum torque. So maximum torque equation आपके पास वही है, you have torque maximum and this is equals to 3 times of I2 square times R2 by S divided by omega S. So what is the value of, now हमने यहाँ पे magnitudes को put करना है, so 3 multiplied by 89.91 square times, जो R2 by S की वैल्यू थी हमारे पास 1.794 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। ओमेगा एस आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, हम उसको दोबारा कैलकुलेट करना बता देते हैं। सो एन एस की वैल्यू है 120 एफ बाय पी। नाउ दिस कम्स आउट टू बी, फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज एंड 120 डिवाइड बाय 4 पोल, सो दिस इज 1800 आरपीएम। सो आपने इसको ओमेगा एस में कन्वर्ट करना है, सो 1800 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, सो दिस विल बी 188.49 radians per second. So this is the value of omega s. We'll put here 188.49. So overall जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आएगी टॉर्क मैक्सिमम की, दैट विल बी 230.81 न्यूटन मीटर्स. नाउ दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज द सेकंड पार्ट? स्लिप हमने देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास जो स्लिप की वैल्यू थी दैट वाज 0.185. तो हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है रोटर स्पीड की वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और रोटर स्पीड की आपको वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान है. यो एन आर इज इक्वल टू 1 माइनस एस टाइम्स एन एस. सो व्हाट इज द वैल्यू? 1 माइनस 0.185 इंटू एन एस 1800. सो दिस विल बी, ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1467 आरपीएम. नाउ हमने अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है. व्हाट इज द सेकंड पार्ट? टू कैलकुलेट द स्टार्टिंग टॉर्क. सो टी स्टार्ट के लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? द स्लिप फॉर स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 1. सो अगेन आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई स्टार्ट. आई स्टार्ट वही फॉर्मूला है, यू हैव वी थेवेनिन डिवाइड बाय जेड टोटल. तो जेड टोटल में अब आपने एस की वैल्यू को 1 पुट करना है. सो 254.79 एंगल 1.33 डिग्रीज होल डिवाइडेड बाय 0.5899 प्लस j 1.075 प्लस j 0.464 प्लस यहां पे अब हमने वैल्यू पुट करनी है 0.332. जहां प्रीवियसली हमने इसको s से डिवाइड किया था, अब हम s से डिवाइड करेंगे, लेकिन s की वैल्यू यहां पे 1 है. तो आई स्टार्ट की वैल्यू जो आपके पास यहां पे एक्वायर होगी दैट विल बी 139.84 and the angle is minus 58.4
0.27 degrees. Now you can see that this current is much larger than the running current. Running current आपके पास क्या था 89 something और ये है 139. So starting current of induction motor is always larger than the running current. अच्छा, now we want to calculate T start. T start आपके पास यहाँ पे क्या होगा, and that is 3 times I2 square times R2 divided by S. S is 1, so मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, into omega divided by omega S. So 3 times हमने यहाँ पे magnitudes को ही put करना है, 139.84 square into 0.332 whole divided by 188.49. So the value will be 103.33 Newton meters. So ये आपके पास है starting torque. और अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे, जिसमें स्टेटमेंट में उसने ये कहा था कि your R2 is now doubled. So previously आपके पास जो R2 की वैल्यू थी that was 0.332. Now the new R2 is doubled and that will be 0.664 ohms. So again सारा वही प्रोसीजर है, हमने दोबारा करना है. We will find out slip for torque maximum and that will be 0.664 R2 divided by R Thevenin. R Thevenin आपके पास जो है that will be 0.5899. R Thevenin में कोई चेंज नहीं आएगी, that will be J 1.075. This is X Thevenin plus 0.464 J. This is our X2. Now ये हम इसको वो फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, R Thevenin square plus X Thevenin plus X2 whole square और फिर अंडर रूट. लेकिन ये काम आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो कैलकुलेटर से सॉल्व करने का तरीका है कि आपने उसको एंड में R और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो द वैल्यू ऑफ R विल बी आवर मैग्नीट्यूड. सो 0.395, that is the value of the slip. Now you can find out the value of rotor. रोटर आप इसमें अपने मोटर की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं. That will be 1 minus S into NS. NS is again 1800 RPM. So 1 minus 0.395 into 1800. So what is the value? That will be 1089 RPM. Now इसको अगर हमने रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ओमेगा आर की वैल्यू जो आपके पास आएगी दैट विल बी 114.04 रेडियंस पर सेकंड. नाउ अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I2 for torque maximum, and this value will be V Thevenin divided by Z total. तो V Thevenin आपके पास वही है 254.79 and the angle is 1.33 degrees whole divided by 0.5899. ये कैलकुलेशंस बड़े ध्यान से करनी पड़ेंगी क्योंकि दीज आर नंबर्स हैं और इसमें पॉइंट्स के आगे डिफरेंस है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि आप लोग कोई ना कोई गलती करें. सो 0.464 प्लस 0.664 divided by the value of slip and that is 0.395. So यहाँ से आप जो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, this current will be 92.87 and the angle is minus 32.79 degrees. So now it is quite easy to calculate the torque maximum value, and this will be 3 times I2 square, I2 for torque maximum, into R2 by S
divided by omega s. So 3 multiplied by the magnitude 92 point, this is 92.26. .26 whole square divided by 188.49 multiplied by 0.664 divided by 0.395. So ये जो वैल्यू आपके पास आएगी that will be 230.08 न्यूटन मीटर. नाउ यू कैन सी कि ये आपके पास जो मैक्सिमम टॉर्क है और जो प्रीवियसली आपने मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट किया था, दिस हैज अ सेम वैल्यू. ऑफ कोर्स पॉइंट में आपके थोड़ा सा डिफरेंस है. दिस इज 230.08, दिस इज 230.8. सो इट मीन्स दैट यहां से एक बड़ा जबरदस्त कंक्लूजन आपके सामने आया. व्हाट इज द इवन वेदर R2 की वैल्यू कुछ भी हो, आपके मैक्सिमम टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो फिर इफेक्ट किस पे पड़ेगा? दैट इफेक्ट विल बी ऑन द स्टार्टिंग टॉर्क. सो लेट्स कैलकुलेट द स्टार्टिंग टॉर्क. सो टी स्टार्ट आपके पास फिर वही वैल्यू आएगी. इसमें अब हम क्या करेंगे, जो I2 कैलकुलेट करना है उसमें हमने स्लिप की वैल्यू को 1 रखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट I स्टार्ट. तो I स्टार्ट फाइंड आउट करने के लिए अगेन Vth डिवाइड बाय Z टोटल. तो मैं डायरेक्टली वो वैल्यूज पुट करता हूं. 254.79 एंगल 1.33 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 0.5899 प्लस J 1.075 प्लस J 0.464 प्लस 0.664. यहां पे आपने स्लिप से इसको डिवाइड नहीं करना. तो जब आप इसको स्लिप से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? दैट विल बी योर स्टार्टिंग करंट. यहां से आप स्टार्टिंग करंट की वैल्यू देखें तो दैट विल बी 126.76 एंड द एंगल विल बी -50.07 degrees. Now you will find out the value of T start. तो T start की वैल्यू जो आपके पास आएगी that will be 3 times magnitude of current 126.76 square multiplied by R2, and R2 is 0.664 divided by the value of omega s, that is 188.49 रेडियंस पर सेकेंड. यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 169.81 Newton meters. So this was the starting torque when R2 is doubled. Now, what is the last step of our numerical is to calculate, is to plot the curve. हमने इसकी कर्व को प्लॉट करना है और देखना है कि R2 और R1 की जो R2 की जो वैल्यू डबल की हमने और उससे क्या इफेक्ट पड़ा. सो वी हैव एक्स एक्सिस जिसमें हमने ओमेगा को रखना है और वाई एक्सिस पे हमारे पास है टॉर्क इंड्यूस्ड. नाउ एक मैक्सिमम आपके पास पॉइंट है और एक मिनिमम पॉइंट है. मिनिमम पॉइंट पे आपके पास जो ओमेगा की वैल्यू होगी दैट विल बी 0 और यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी, मैं इसको आरपीएम में लिखूंगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे. रेडियन आरपीएम. सो वी हैव 1800 आरपीएम. सो एट 0 द स्लिप वैल्यू विल बी 1 हियर और यहाँ पे आपके पास जो स्लिप की वैल्यू होगी दैट विल बी 0. सो हम अपने एक्सेस वाई एक्सिस को भी प्लॉट कर लेते हैं. रफली 50, 100, 150, 200 and 250. Similarly, we can have our x-axis. roughly हम इसको 900 rpm
यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे 450 RPM, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 1350 RPM। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पहला R1 की वैल्यू है उस पे देखना है कि व्हाट वाज आवर न्यूटन मीटर। जो टॉर्क था मैक्सिमम, जो स्टार्टिंग टॉर्क था उसकी वैल्यू थी 103.33 न्यूटन मीटर्स। सो 103.33 न्यूटन मीटर्स आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एट दिस पॉइंट, और मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू आपके पास थी दैट वाज 230 न्यूटन मीटर्स, एंड दिस वाज एट 1467 RPM। सो 1406 RPM आपके पास है इस पॉइंट पे, एंड दिस इज कमिंग एट 230 न्यूटन मीटर्स। तो एक पॉइंट आपने यहां पे प्लेस कर दिया। सो दिस इज आवर मैक्सिमम टॉर्क लाइन, और दिस इज कमिंग एट 1467 RPM। सो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कर्व को प्लॉट करना। तो कर्व को प्लॉट हमने करना है इस तरह, एट दिस पॉइंट दिस विल बी गोइंग एट दिस वे, और उसके बाद इट विल बी स्ट्रेट लाइन टू दिस पॉइंट। नाउ दिस इज द कर्व when your R2 was 0.332 ohms. Now what is the second curve? कि जब आपके पास R2 डबल हो गई, तो जब R2 डबल हो गई, now our new starting torque is 169.81. So 169.81 आपका यहां पे लाई करेगा। This is 169.81 न्यूटन मीटर्स, और इसका मैक्सिमम टॉर्क आपका जो एक्वायर हुआ था दैट वाज 1089 RPM। तो 1089 RPM राउंड अबाउट यहां पे किसी पॉइंट पे आएगा, एंड दिस इज 1089 RPM। मैं इसको रफली स्केच कर रहा हूं। इन योर एग्जाम, इन योर पेपर, आपने भी बिहेवियर ही चेक करना है कि इसका बिहेवियर क्या होगा। अगेन जो मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास था दैट वाज 230.8 न्यूटन मीटर्स। तो हम अगर रफली इसको प्लॉट करें, आपको टॉर्क और स्लिप के रिलेशंस का पता है कि कैसे प्लॉट की जाती हैं। सो दिस इज द इंक्रीजिंग, ये मैक्सिमम इस पॉइंट पे जाएगा, एंड उसके बाद ग्रेजुअली ये आपका जीरो लाइन को टच करेगा। सो ग्रीन लाइन इज बेसिकली प्रेजेंटिंग व्हेन योर R2 इज 0.664 ohms। तो मैं यहां से इंट्यूटिवली एक ड्राइव कर सकता हूं कि अगर मैं इवन R2 को और ज्यादा इंक्रीज करूं, कि जब आपका टॉर्क मैक्सिमम हो, तो आपका ये जो थर्ड प्लॉट होगा दैट विल बी लाइक दिस वन, ये मैक्सिमम, और उसके बाद इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन टू दिस वन। दिस विल बी R2 even greater value than 0.664. Maybe you can assume that this will be 0.8 0.84 समथिंग ohms। मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन ये इंट्यूशन से आपको पता चल जाता है। और इवन अगर आप इसकी वैल्यू को और लोअर ले जाएं, R2 की वैल्यू को, तो आपके पास ये जो प्लॉट है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। स्टार्टिंग टॉर्क आपका और रिड्यूस हो जाएगा, और ये इस पॉइंट तक लाई करेगा, और ये कर्व दैट विल बी लाइक दिस वन, और उसके बाद स्ट्रेट टू ये आपकी जो कर्व होगी दैट विल बी from this point. So this is the behavior of torque and speed characteristics. Now in next lecture हम ये देखेंगे कि क्या हम starting torque और maximum torque को equalize कर सकते हैं। For example, आपको कोई ऐसी मोटर required है जिसमें traction purpose है। For example, किसी चीज़ को, कोई ऐसी आपने मशीन बनानी है कि पत्थरों को for example आपने grind करना है, तो start में बहुत high torque चाहिए। So your starting torque should be your maximum torque। तो उसके लिए हम क्या क्राइटेरिया एक्वायर कर सकते हैं, तो ये मैं इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करूंगा। सो सी यू सून। आप इस न्यूमेरिकल की ज़रूर प्रैक्टिस करें, इसको एक दो दफ़ा सॉल्व करें। आई विल ब्रिंग एक्सक्लूसिव न्यूमेरिकल जिसमें हम स्टार्ट से लेकर एंड तक इंडक्शन मोटर की सारी कैलकुलेशंस को देखेंगे। सो सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।